Hello everyone. So as we have completed chapter 1 nutrition in plants, so today we are going to start chapter number 2 nutrition in animals. As we have seen, nutrition in nutrition in plants are necessary, and so and we have also seen that all living organisms need nutrition to live on the earth. So like that, animals are also having mode of nutrition that we have to see in this chapter, which kind of food they are getting, how many food components are they getting from the food. Okay, so first, food contains many components. Human beings and animals are eating so much various types of food. From that food they are getting water, carbohydrates, protein, energy, fats, minerals. Okay, water sorry water they are getting carbohydrate, protein, energy, fat and minerals. These things they are getting from the food. As we have seen, water is not the component of food, but water is necessary for our body to grow up. If we don't drink water, then we feel lack of energy, weakness, tiredness. That's why we have to intake some water during the day. Also, carbohydrates we are getting from rice and roti and other things uh, which can contain glucose or starch. Proteins that we are getting from some fruits, some beans, sprouts, and eggs and dairy products, that we are getting protein. Energy we are getting from some different types of food. Fats we are getting from oily food. Minerals we are getting from liquefied food. And vitamins are really needed for our body. So we are eating lots of food, is it? We are eating food, but there is one thing that we have to remember. We are eating food directly. Just a second. Okay, so directly we are eating food, and food we are eating that is not in particular protein form, or we can say in carbohydrate or in fats or minerals and vitamins. If we want to take say this kind of things, then we have to convert this complex food into simplex form. So complex food means carbohydrate, roti, sabji directly we are eating. Then what our digestive system do? Our digestive system convert this component in simplex form from the complex form. So abhi, like we are also feeding, and on our earth lots of animals are living, so they are also having different types of feeding, and various modes of feeding is there. So here name of animals is given. Snail is there. Snail is eating leaves and other small things, and mode of feeding is chewing. Ant is eating food particles. And by the chewing the ant is completing. Small animals are there, they are doing capturing and swallowing. Hummingbird is eating nectar of flower, and by the sucking they are completing. Lice, they are sucking the bloods of humans. Mosquito, they are also sucking the bloods of humans. Butterfly, they are eating the nectar of flower. By the process of siphoning they are completing this. And house fly is there. House fly eating almost everything house fly is eating. And by the siphoning, house fly is completing their method, their feeding method. Now, so if so here we have seen that
various types of or various modes of feeding of different animal, different insect, different flies. So now in our human body there is a digestion system, and that digestion system is very long that we have to learn in this chapter by step. So अगर हम देखें तो from where our digestion system start, हम ऐसा सोचते हैं our digestion system start from our stomach. No, we are wrong. Our digestion system means whenever we are eating the food, the food digesting process is start from our mouth. So there is saliva and it is started the digestion of food. So there is the first step is buccal cavity is there. Buccal cavity is in our mouth first. Then there is a food pipe, then stomach, small intestine, large intestine and anus. Okay, I am explaining you what happened exactly. See, in the picture you can see buccal cavity. You are eating food directly, okay. तो इन बकल कैविटी देयर इज़ अ सलाइवरी ग्लैंड. तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा जो खाना है उसके साथ मिक्स करता है और खाना मिक्स होने के बाद उसको डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है. जब थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है सलाइवा, उसके साथ सलाइवा डाइजेस्ट हो जाता है तो वो खाना क्या होता है, फूड पाइप में आता है. ये आपको जो फूड पाइप दिख रही है ये फूड पाइप में आता है. फूड पाइप में आने के बाद व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली विथ इट, फूड पाइप में आने के बाद जो फूड है वो स्टमक में आएगा. स्टमक में आएगा. देन हियर इज़ द पार्ट ऑफ पैनक्रियाज. तो यहाँ पे क्या होगा, सम डाइजेशन जूस, पैनक्रियाज में एक डाइजेस्टिव जूस होता है लीवर में और पैनक्रियाज में. तो यहाँ पे लीवर दिख रहा है आपको. तो ये जो लीवर है ये जस्ट सेकेंड, ये जो लीवर है यहाँ पे और ये जो पैनक्रियास का पोर्शन है यहाँ पे क्या होता है, जूस सेक्रेट होता है. वो जूस जो सेक्रेट होता है वो क्या करता है कि हमारा जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है. तो ये डाइजेस्ट करने का काम करता है. फिर हमारा जो फूड है वो स्टमक में से पैनक्रियास और यहाँ पे जूस मिक्स होके फिर वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फिर वो वहाँ से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में वो फूड का प्रोसेस होता रहता है. उसके साथ पानी मिक्स होता है. फिर उसमें से अलग अलग जो कंपोनेंट्स है वो अलग होते हैं. सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट होते जाते हैं. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट अलग होता है, फैट अलग होता है, विटामिन, मिनरल, ये प्रोटीन से सब अलग होके अपना अपना काम करते हैं और ब्लड में मिक्स होते हैं, वो बॉडी में फैलते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं. तो ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर फूड जो है वो लार्ज यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन में से आके फिर वो एक रेक्टम में पहुँचेगा. रेक्टम में पहुँचने के बाद जो भी बचा कुचा कचरा है जो हम नहीं खा पाएंगे वो बाय द अनस वी आर getting or releasing outside from our body. Okay, next thing we will see in the next video. Otherwise you can see the connected video in this video also. Okay, fine. Now we will start our chapter from here only. Fine, thank you. Okay, so I'm going to start chapter nutrition in animals. So you have learned in chapter number 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. Animals get their food from plant either directly by the eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Some animals eat both plants and animals. So recall that all organisms including human require food for growth, repair and functioning of the body. So animal nutrition includes nutrition requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. Okay,
तो ये वाला हमने देखा कि ज़रूरी पार्ट्स कौन से हैं खाने के लिए। तो अब फिर से हम लिखते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। ओके, तो यहाँ पे ले लेते हैं हमारा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, देन दूसरा आ जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बाद में आएगा प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, इतनी चीज़ें आएगी, वो तो हमने देखी। अभी यहाँ पे कंपोनेंट जो है वो डायरेक्टली तो मिलते नहीं है। कार्बोहाइड्रेट तो एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो वो जो सब्सटेंस है वो कॉम्प्लेक्स में से सिंपल सब्सटेंस में पहले कन्वर्ट होगा, कंपोनेंट सारे ब्रेक डाउन होंगे। ब्रेक डाउन होने के बाद वो हमें विटामिन्स, प्रोटीन, फैट्स वो सब डिवाइड होकर हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा और उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। तो यहाँ पे डिफरेंट वेज दिए हैं टेकिंग फूड के। तो टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सो बीज एंड हमिंग बर्ड suck the nectar, plants, infants and human and many other animals feed on a mother's milk. पाइथन है स्नैक्स, वो पाइथन को स्वेलो करता है। बाद में कुछ एक्वाटिक है एनिमल्स, वो जो फूड पार्टिकल्स जो है वहाँ पे फ्लोटिंग करते हैं वो खाते हैं। और ये वाला जो टेबल है हमने एक्टिविटी, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, आप आगे के वीडियो में देख सकते हैं ना। यहाँ पे हमें एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है। सो starfish feeds और एनिमल्स कवर बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 जिसको हम बोल सकते हैं। देखो ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टारफिश क्या करती है, जो शेल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से कवर किए हुए उसको खाती है। और जब भी शेल ओपन करते हैं स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू द माउथ टू इट सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। स्टारफिश क्या करती है, पॉप्स आउट इट्स स्टमक, अपने पेट को मुंह से बाहर निकालती है सॉफ्ट एनिमल को खाने के लिए, जो शेल उसने पहले से रखा होता है। एंड स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टारफिश यू कैन सी हियर। नाउ डाइजेशन इन ह्यूमंस। ओके, तो हम तो फूड खाते हैं, वी टेक इन थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ फूड आर डिफेक्टेड। तो हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी? द फूड passes through the continuous canal which begins at the buccal cavity and end at the anus and divide into various components. The buccal cavity, the food pies, ऑस्फागस जिसको हम बोल सकते हैं, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन मैंने आपको फिगर में दिखाया, रेक्टम एंड अनस, 6 पार्ट्स आर देयर। और ये जो पूरा लॉन्ग पाथ बनता है इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनल, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं।
जस्ट से। तो ये स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके जो ग्लैंड्स है वो हमने देखा नोट्स में। तो ये बकल कैविटी है, सलाइवरी ग्लैंड है, ऑस्फागस मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, लीवर दिखाया, गॉल ब्लैडर दिखाया, स्टमक भी दिखाया, और जो एक पोर्शन मेरा उसमें लिखने का बाकी रह गया था वो पेनक्रियास था। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड अनस। तो इतने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सारे जो सब्सटेंस है फूड के पहले कॉम्प्लेक्स में से सिंपल में कन्वर्ट होते हैं, और कन्वर्ट होने के बाद एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो बनता है, एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी द माउथ एंड द बकल कैविटी। तो माउथ क्या है? जो हम खाना खाते हैं, फूड इनटू बॉडी थ्रू द माउथ, एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड ingestion. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. So each tooth is rooted in the separate socket in the gums. So our teeth vary in appearance and performance different function. तो अलग अलग नाम दिए हैं टीथ के. Let's see that. So Buzo is fascinated by the highly coiled small intestine seen in figure 2.2. तो स्मॉल इंटेस्टाइन बोला है, लेकिन हाईली मतलब उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला? ये भी एक सोचने वाली बात है. तो ही वॉन्ट्स टू नो द लेंथ. उसकी लेंथ क्या है? उसकी लेंथ आपको पेज नंबर 16 पे दिखेंगी. और हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इज एकोमोडेटेड इन अ स्मॉल स्पेस विद इन द बॉडी. अभी जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सारे पार्ट्स, तभी उसमें आ जाएगा. तो सबसे पहले एक एक्टिविटी करते हैं. क्या करना है? वॉश योर हैंड्स और मिरर में देखना है. क्या करना है? काउंट करने हैं हमारे दांतों को. आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, फिल द टीथ. टीथ को फिल करना है. पीछे का दांत है, एक मिनट. ओके, सो नाउ वॉश योर हैंड. फिर हमारी जो पहली फिंगर है उसको लेके जाना है हमारे माउथ के अंदर और फील करना है टीथ को. तो आपको कितने टाइप के अलग अलग दांत दिखते हैं? तो क्या करना है? सबसे पहले एक एप्पल का टुकड़ा लेना है, पीस ऑफ एप्पल, एंड ब्रेड एंड ईट इट. तो आप जब बाइट करेंगे ना और कट करेंगे तो आपको अपने दांतों के निशान उसके ऊपर दिखेंगे. एंड विच वन इज़ फॉर पियर्सिंग ऑन टीयरिंग. तो जब भी हम एप्पल खाएंगे तो हम आगे का दांत है वो शार्प होता है, उससे खाएंगे. एंड ऑल्सो फाइंड आउट द वंस आर यूज फॉर चिविंग एंड ग्राइंडिंग. चबाने के लिए हम जो पीछे के दांत है उसको यूज़ करेंगे ग्राइंडिंग के लिए और चबाने के लिए, और जो तोड़ने कट करने के लिए या टीयर करने के लिए जो है हमारे आगे के दांत हम यूज़ करेंगे. तो हमें टाइप्स ऑफ टीथ लिखने हैं यहाँ पे. ओके,
अपर जॉ में कितने हैं, लोअर जॉ में कितने हैं, दैट वी हैव टू राइट हियर. Just a second. So our mouth has the salivary gland which secretes saliva. So do you know the action of saliva on food? Let us find out. Okay. Okay. So you can see in this picture that there are 4 types of teeth in our mouth: incisors, canine, premolar, and last one, just a second, molar. तो आपको दिख रहा है कि हमारा जॉ जो है वो ऐसे स्टार्ट होगा. ये आगे के दांत है हमारे. लेट मी शो यू. ये जो पोर्शन दिख रहा है ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और पीछे जाएगा. देखो यहाँ से लेके हमारे दांत हमको ऐसे दिखेंगे, ऐसे. समझ में आ रहा है? ओके. तो अभी जो टीथ है मोलार, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 3 मोलार. तो जितने ऊपर है उतने ही नीचे भी आएंगे. तो लोअर जॉ में 3 है यहाँ पे. बाद में प्री मोलर कितने हैं, 2 इधर है, 2 इधर है. मतलब ये हो गए 1 2 3 मोलार, 1 2 3 मोलार. मतलब ये हो गए 3. मतलब नीचे लोअर जॉ में हो गए 6. यू कैन फील इट. लोअर जॉ में हो गए 6 एंड अपर जॉ में 6. मतलब मोलार हो गए टोटल 12. बाद में प्री मोलार, आपको यहाँ पे प्री मोलार 2 दिख रहे हैं. तो आपको जो प्री मोलार 2 दिख रहे हैं, मतलब नीचे 4 और ऊपर 4. इन अपर जो 4 एंड इन लोअर जो 4. देन कितने हुए, 8. 12 प्लस 8 20 हो गए. अभी कैनाइन कितने हैं, 1 and 2 ओनली. So 2 and 2 4, it's a 24. Then आएगा कौन सा, इंचियर. इंचियर कितने हैं, 1 2 3 4. इंचियर इज 4 and 4 8. तो हो गए हमारे 4 + 12. अरे 4 + 8 12. मतलब हो गए हमारे 32. ओके. सो अभी हमें यहाँ पे लिखना है कटिंग और बाइटिंग के लिए हम कौन से टीथ यूज़ करते हैं. तो कट करने के लिए और बाइट करने के लिए हम आगे का कौन सा वाला है मैं आपको बताती हूँ. कैनाइन को यूज़ करते हैं हम कटिंग और बाइटिंग के लिए, या इंचियर्स भी ले सकते हैं उसमें. बाद में पियर्सिंग एंड, तो उसके लिए हम कैनाइन का यूज़ करते हैं. बाद में चिविंग एंड ग्राइंडिंग के लिए मोलार एंड प्री मोलार टीथ हमारे यूज़ होंगे. ऐसे करके हमारे 32 टीथ हमारे ऐसे यहाँ पे कंप्लीट होंगे. तो अभी हमें स्टार्ट करनी है एक्टिविटी 2.3. क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और टेस्ट ट्यूब को लेबल A एंड लेबल B ऐसे लेबलिंग करना है. एक टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, एक टेबल स्पून हमें बॉयल, और सिर्फ बॉयल राइस, मतलब खाया हुआ नहीं. और दूसरा जो है उसमें हमने चबा के चू करके जो राइस रखा है वो हमें टेस्ट ट्यूब B में डालना है. देन ऐड सम वाटर इन दैट. And now we have to see what is the effect of saliva in rice. Now add some 2 or 3 drops of iodine solution. What you can see in test tube B, 3-4 ml water in both the test tube. Now pour 2-3 drop iodine solution and observe why there is the change in color test tube.
अभी दोनों में चेंज क्यों हुआ? दोनों में राइस ही है, लेकिन हमने क्या किया है, एक में सिर्फ बॉयल राइस और एक में हमने थोड़ा सा चबा के राइस डाला है। दैट मीन्स इट कंटेन सलाइवा फ्रॉम आवर माउथ। तो अगर यहाँ पे सलाइवा हो रही है तो सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो सलाइवा में जो राइस में स्टार्च था वो स्टार्च को उसने शुगर में कन्वर्ट किया। एंड द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। और उसमें टंग ने भी उसकी हेल्प की, टंग ने हेल्प करी और क्या किया, वो बकल कैविटी के साथ अटैच होती है, वो कहीं पे भी घूम सकती है। तो आपको क्या टंग का फंक्शन पता है? हम टंग तो सबसे पहले बोलने के लिए यूज़ करते हैं, बाद में सलाइवा जो है मिक्स करने के लिए, फूड स्वेलो करने के लिए भी टंग यूज़ करते हैं, टेस्ट करने के लिए टेस्ट बर्ड्स होते हैं। दैट वी हैव टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके फाइन, थैंक यू सो मच।